الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ کچھ دوست یہ بار بار فرمائش کر رہے ہیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے کچھ عمل بتائیں۔ دیکھیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے سب سے بڑا اور سب سے عظیم عمل اور سب سے عظیم عبادت مولا حسین کی عزاداری ہے، مولا حسین کی ماتمداری ہے اور مولا حسین کا غم ہے۔ اس سے بڑا کوئی بھی عمل نہیں ہے اور اس سے بڑی کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔ پھر بھی دوستوں کی فرمائش پر چند بہترین عمل پیش کرتا ہوں تاکہ مولا حسین کے عزادار، مولا حسین کو چاہنے والے راضی ہو جائیں۔ سب سے پہلے حاجت روائی کا ایک بہترین عمل ہے، آپ ایک تربوزہ خرید کریں، اس کے 4 حصے بنا کر کے اپنے سامنے رکھیں اور اس تربوزے پر آپ 1192 بار جو سورہ عمران کی آیت مبائلہ ہے اس کا جو آخری حصہ ہے یہ دم کریں۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ آیت 1192 بار آپ دم کریں۔ اس کے بعد آپ سورہ احزاب کی جو درود والی آیت ہے یہ آپ 1043 بار دم کریں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت یہ 1043 بار آپ دم کریں۔ دونوں آیتیں تربوزے پر دم کر کے پھر آپ اس کو کسی ڈوری سے باندھ کر کے شہد کے چھتے کے نیچے رکھ دیں۔ آپ دل میں اپنی حاجت رکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی حاجت کیسے پوری ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہد کے چھتے کے نیچے کیوں۔ اب دیکھیں کہ شہد کا کام کیا ہے۔ ایک بار حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ، شہد کی مکھی اڑ رہی ہے۔ حضور نے کہا اے شہد کی مکھی ادھر آ۔ وہ شہد کی مکھی آ کے حضور کی ہتھیلی پہ بیٹھ گئی۔ حضور شہد کی مکھی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے شہد کی مکھی، جب تو جڑی بوٹیوں کا عرق چوستی ہے وہ تو کڑوا ہوتا ہے، کس کا نمکین ہوتا ہے اور کس کا تلخ ہوتا ہے، پھر تیرا لعاب میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ حضور کو تو پتہ تھا، صحابیوں کو بتانا چاہتے تھے۔ شہد کی مکھی نے کہا کہ یا رسول اللہ برحق تیری بات حق ہے، سچ ہے، جب میں کسی جڑی بوٹی کا عرق چوستی ہوں مجھے کڑوا بھی لگتا ہے، نمکین بھی لگتا ہے، تلخ بھی لگتا ہے، پھر میں سب سے پہلے آپ کی آل کے دشمنوں پہ لعنت کرتی ہوں، آپ کے اور آپ کی آل کے دشمنوں پہ لعنت کرتی ہوں، تو وہ تلخ، نمکین اور کڑوا جو عرق ہے وہ میٹھا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھتی ہوں، پھر وہ شفا بن جاتا ہے۔ تو یہ راز شہد کی مکھی نے حضور کو بتایا، حضور نے صحابہ کو بتایا، ان کی روایات کے وسیلے ہم تک پہنچا۔ اب جو ہم شہد کی چھت کے نیچے جو تربوزہ رکھیں گے اس پر یہ آیت مبیلہ کیوں دم کر رہے ہیں، جس میں جھوٹوں پر لعنت کی گئی ہے۔ دیکھیں کہ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی جب نجران کے عیسائیوں نے حضور کو تنگ کیا۔ حضور ان کو دلیل دے دے کر کے تھک گئے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا، حضور دلیل دیتے گئے کہ عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا نہیں ہے، پھر بھی وہ نہیں مانتے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر کے فرمایا حضور یہ تیرے کسی دلیل کو، کسی علمی دلیل کو نہیں مانتے ہیں، یہ تجھے جھوٹ بات کر رہے ہیں اور تجھے جھوٹا کہہ کر کے رد کر رہے ہیں۔ اب ان سے مباہلہ کرو، ان کو کہہ دے کہ تم اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے عورتوں کو لائیں، ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لائیں، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، پھر ہم آ کر کے بد دعا دیتے ہیں، جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرتے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ عیسائیوں نے یہ مباہلہ رکھا۔ اب عیسائی دیکھ رہے ہیں کہ حضور کس انداز سے آتے ہیں۔ ایک عیسائی پادری تھا جو
बाला खाने पर छत पर चढ़ के देख रहा है मंजर। देखें कि मुसलमानों का नबी हुजूर किस अंदाज से आता है। वो क्या देखते हैं कि हुजूर उंगली से इमाम हसन को पकड़ा और अपनी छाती से इमाम हसन हुसैन को लेकर के वहाँ जा रहे हैं, और हुजूर के पीछे जनाब फ़ातिमा सलाम अलैहा और उसके पीछे पीछे मौला अली। जब इस अंदाज से मुबाइला में ये हस्तियाँ जा रही हैं, ईसाइयों का पादरी जब देखता है कि इस अंदाज से ये हस्तियाँ जो आ रही हैं, अगर ये हस्तियाँ हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे तो ज़मीन पर कोई भी ईसाई ज़िंदा नहीं रहेगा, सारे ईसाई मर जाएंगे। ईसाई पादरी ने कहा कि इनको कह दो कि हम मुबाइला नहीं करते, जितना भी जुर्माना आप कहो हम देने के लिए तैयार हैं, हम मुबाइला नहीं करते। अब आयत कुरान में आ गई, लानत वाली जो आयत है वो कुरान में आ गई, मुबाइला नहीं हुआ। अब लानत तो बरसी नहीं, क्योंकि लानत तब बरसती जब ईसाई मुबाइला करते, मुबाइला नहीं हुआ और आयत कुरान में आ गई। और जो लानत है वो ज़मीन और आसमान के बीच रुक गई, वो लानत ज़मीन और आसमान के बीच रुक गई। अब लानत इंतज़ार कर रही है। ये जो मुबाइला वाली हस्तियां हैं, जो भी इनको झुटलाएगा, जो भी इनकी दलील को रद्द करेगा, जो भी इनको दलील को नहीं मानेगा, मैं उस पर बरसूंगी। अब अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। जो भी इन 5 हस्तियों को झूठा कहे, इनकी दलील को रद्द करे, अब लानत उस पर बरसेगी। फिर लानत मुबाइला के बाद बरसने लगी। किस किस पर बरसी वो आप खूब जानते हैं कि इनको किसने झूठा कहा, किसने इनके दलीलों को रद्द किया, किसने इसके इल्मी दलील को ठुकरा दिया, बस उस पर लानत बरसी। तो ये आयत मुबाइला वाली जिसमें लानत का जिक्र है, झूठों पर लानत की गई है, ये तरबोज़े पर दम करनी है। और दुरूद वाली आयत तरबोज़े पर दम करनी है। फिर वो तरबोज़ा शहद के छत्ते के नीचे रखना है। अब उस शहद की मक्खियों का काम क्या है? ये लानत भी करती हैं, दुरूद भी पढ़ती हैं। जब आप ये काम करोगे, आप हाजत दिल में रख कर जब वो तरबोज़ा खाएंगी, उनके पास वही आती है। यह कुरान में जिक्र है कि शहद के मक्खियों के पास वही आती है। अल्लाह कुरान पाक की सूरह जो नहल है उसमें इरशाद होता है कि के पास वही आती हैं। फिर उन शहद की मक्खियों को पता चल जाता है ये जो तरबोज़ा रखा गया है, जिसमें आयत मुबाइला दम की गई है, जिसमें आयत दुरूद दम की गई है, एक काम हमारे ज़िम्मे लगाया गया है। अब शहद की मक्खियाँ दुनिया के कोने कोने में आपके काम के पीछे दौड़ेंगी। ये एक राज था। किसी पीर बाबा के पास ये अमल नहीं है, किसी किताब में आपको अमल नहीं मिलेगा। किसी किताब में अमल दिखाओ, किसी पीर बाबा के पास अमल दिखाओ, मैं ज़िंदगी आपको कैद लिख के दे दूँगा। ये अमल मुझे आलिम ख़वाब में अता हुआ था और मैंने काफ़ी लोगों को दिया। कुछ पुराना अमल है, कुछ वक्त का, और आजकल इंटरनेट पर अधूरा अमल लोग अपने नाम से बयान कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये सारा साबित अमल दे रहा हूँ। मौला हुसैन के सदक़े मैंने इस राज को आम कर दिया। आपको बताता हूँ ये कैसे काम होता है। एक औरत जिसका बेटा गायब हो गया, रूठ के वो माँ बाप से चला गया, 3 साल हो गए उसका बेटा वापस नहीं आया। वो औरत मेरे पास आती है और अपना जो दुख वाला दास्तान बयान करती है कि बाबा जी मेरा बेटा है, 3 साल हो गए हैं, रूठ के चला गया है, पता नहीं ज़िंदा है या मर गया है, ये भी पता नहीं। आप कम से कम अपने इस्तिखारा से या किसी भी तरह हमें ये बताएं कि हमारा बेटा ज़िंदा है या मर चुका है। मुझे एहसास आया उस मस्तूर पर। मैंने कहा कि मैं आपको एक अमल देता हूँ, अगर आपका बेटा ज़िंदा है तो वापस आ जाएगा, अगर ज़िंदा नहीं है आपको उसकी जो रिपोर्ट है ख़बर मिल जाएगी। उसने कहा कि मेहरबानी होगी अगर ऐसा काम हो जाए। मैंने ये शहद वाला तरबूजे वाला अमल दे दिया। 16 दिन के बाद वो मस्तूर मेरे पास आई, बड़ी खुश थी। उसने कहा कि मेरा बेटा वापस आ गया है, लेकिन उसका जो चेहरा है वो सूजा हुआ है। मैंने कहा वो क्यों? वो मुस्कुरा के बोलने लगी कि उसको शहद के मक्खियों ने काटा है। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा कि मेरे बेटे ने खुद बताया कि मैं कभी भी वापस ना आता, मगर मुझे शहद के मक्खियों ने इतना तंग किया, मैं मजबूर होकर अपने घर आया हूँ। हमने पूछा वो कैसे? उसने कहा कि पहले तो शहद की मक्खियाँ आती थी मेरे ऊपर, भूं 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 बुनबुनाहट करती थी, मैं कोई कुछ महसूस नहीं करता था। फिर
1-2 दिन के बाद वो मुझे तंग करने लगी, मेरे बालों में आकर के फंस जाती थी, कभी मेरे चेहरे पे, कभी मेरे कानों में, भुनभुनाहट। मैं बड़ा इससे मायूस और परेशान हुआ। फिर क्या हुआ, जब मैं रात को सोता था, खुदा जाने रात को शहद की मक्खियाँ कहाँ से आ जाती थी मेरे कानों में भुनभुनाहट की आवाज़ करके, और मुझे ये आवाज़ सुनाई देती थी, घर जाओ घर जाओ घर जाओ, ये आवाज़ सुनाई देती थी। और कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे धीरे धीरे काटने लगी, और जब मेरे कानों में भुनभुनाहट की आवाज़ आती थी, मुझे ये महसूस होता था उनकी आवाज़ से, घर जाओ घर जाओ घर जाओ। फिर मुझे काटने लगी, मेरा सुख चैन आराम बर्बाद हो गया। फिर मैं मजबूर होकर के घर आया हूँ। ये उस मस्तूर के बेटे का बयान है। उसके अलावा जिसको भी हमने ये अमल दिया है, ये 100% दुरुस्त साबित हुआ है। ये मौला हुसैन के अज़ादारों के लिए, मौला हुसैन के मानने वालों के लिए मेरी तरफ से ये इजाज़त आम है, आपको इजाज़त है। मगर नाजायज़ हरगिज़ न करना। जो भी नाजायज़ करेगा वो अपने नुकसान का ख़ुद ज़िम्मेदार होगा, याद रखना, इसको मामूली मत समझना। अच्छा, दूसरा जो अमल मैं आपको देना चाहता हूँ, ये इंतहाई बेहतरीन अमल है और सैयद गौसल आज़म का अमल है। आपको क्या करना है कि मुहर्रम की 10 तारीख तक इसको मुकम्मल करना है। 3 रातों का अमल है। आप तहज्जुद की नमाज के वक्त आपको उठना है और 2 रकत नमाज पढ़नी है। पहली रकत में 1 बार सूरह हमद और 101 बार सूरह अखलास, दूसरी रकत में 1 बार सूरह हमद और 99 बार सूरह अखलास। उसके बाद आप नमाज ख़त्म करके सजदा में जाएं। 1000 बार सजदा में आपको पढ़ना है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये आपको पढ़ना है। आप 1 साल के लिए इस समय अल्लाह के आमिल हो गए। अब आप इसको शफा के काम के लिए इस्तेमाल करें, भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये आपको 10 मुहर्रम तक की रात तक कंप्लीट करना है। 3 रातों का अमल है, फिर भी याद रखें। अब कैसे इसको इस्तेमाल करना है, आप ज़ैफ़रान हर बीमारी के लिए इंतहाई बेहतरीन है, और 16 बार लिख करके उस बच्चे को पिलाएं। और मर्दों के मर्ज़ के लिए 11 बार ज़ैफ़रान से चीनी की प्लेट पर ये याला लिख करके उसको पिलाएं, और 11 बार लिख करके उसके गले में डालें। ये मर्दाना मर्ज़ों के लिए है। और कोई ऐसा मर्ज़ है, किसी मरीज़ को, मर्द को या औरत को या किसी बच्चे को, जो डॉक्टरों की समझ में नहीं आता है, आपने हज़ारा कोशिश की, उसकी एक्सरा कराए, उसकी रिपोर्टें कराई, मगर पता नहीं चलता इसको मर्ज़ क्या है। रोज़ बरोज़ वो कमज़ोर होता जाता है जो मरीज़ है, पता किसको नहीं चलता। आप किसी फ़कीर के पास, किसी बाबा के पास जाते हैं, वो कहता है कि ये जिन्न है, ये भूत है, और ये जो है इसको जादू है। ज़ाहिर है वो तो बाबे ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि जब वो जिन्न जादू नहीं कहेंगे उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, वो तो ऐसा ही कहेंगे। मगर आपको शफा नहीं मिलती है, मर्ज़ का पता नहीं लगता है। अब आपको क्या करना है कि नमाज मगरिब के बाद मरीज़ के नाम के आदाद निकाल कर आपको उसकी आदाद के मुताबिक ज़ैफ़रान से कागज़ पर या अल्लाह लिखना है, उसकी नाम के आदाद के मुताबिक। और आपको नीचे लिखना है कि फुल्ला मरीज़ का जो मर्ज़ है उसकी मुझे ख़बर मिल जाए। फिर वो आप जो पर्ची है, कागज़ है, सिरहाने रख करके रात को सो जाएं। पहली रात आपको आलिम ख़वाब में बताया जाएगा कि इस मरीज़ को ये मर्ज़ है और इस मर्ज़ की ये दवा है, इसको आप आज़मा करके देखें, ठीक है। और उसके अलावा आप सांस बंद करके कागज़ पर ज़ैफ़रान से या अल्लाह लिखना शुरू करें। पहली सांस में जितने भी लिख सकें लिख करके वो पर्ची रखें। अब दूसरी बार सांस बंद करके आप फिर पर्ची पर वो लिखें। अब दूसरी सांस में जितने लिख सकें वो पर्ची रखें। अब तीसरी बार आप सांस बंद करके या अल्लाह लिखना शुरू करें पर्ची पर ज़ैफ़रान से। तीसरी बार जितने लिख सकें वो भी लिखें। अब जो आप पहली बार सांस बंद करके कागज़ पर लिखा है, किसी भी बच्चे को कोई भी मर्ज़ है, वो आप लिखी हुई पर्ची उसको पिलाएं, इंशाल्लाह उसका मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जो बच्चों के मर्ज़ होते हैं। और दूसरी सांस में जो आपने लिखा है वो किसी औरत को कोई भी ज़नाना मर्ज़ है, मसलन बांझपन, आकर,
चरियान, सीलान रहम, हस्त्या, हैज़ की कोई जो खराबी, कोई भी जनाना मर्ज़ है उसको आप वो दूसरे सांस में लिखी हुई पर्ची जो है वो पिला दें, उसका हर मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। और तीसरे सांस में जो आपने लिखी है पर्ची, वो मर्दाना जो मर्ज़ हैं आप उस मर्द को पिला दें, उसका हर मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। ये अमल था बुज़ुर्ग सैयद गौस अल आज़म का, इंतहाई मुजरब बेहतरीन अमल है। हमने अपने शागिर्दों से करवाया, 100% नतीजा दुरुस्त साबित हुआ। और उसके बाद मैं आपको 10वीं मुहर्रम का एक अमल देना चाहता हूँ, इंतहाई अजीब व गरीब अमल है। ये आपको 10वीं मुहर्रम के दिन करना है और 12 बजे से लेकर के 1 बजे के दरमियान, यानी कि ज़ुहर और असर की नमाज के बीच, इस टाइम पर आपको क्या करना है कि एक रूह अफ़ज़ा का बोतल लें, उसका ढक्कन खोल करके अपने सामने रखें। आप करबला की रुख, मतलब कि इराक़ की रुख बैठ करके आप उस जो बोतल है रूह अफ़ज़ा की, उस पर आप 128 बार या हुसैन या हुसैन, इंतहाई सोज़ व गम के जो आवाज़ से और मनाजात से आपको ये कहना है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ये आपको 128 बार इस बोतल पर दम करना है, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद। फिर आपको क्या करना है, इस बोतल को आप संभाल के रखें, ठीक है। ये हर मर्ज़ की जो दवा है, हर मर्ज़ के लिए ये दवा है। अब कोई भी मरीज़ आपके पास आए, चंद कतरे उससे आप उससे चंद कतरे किसी भी पानी की बोतल में डाल करके आप उसी मरीज़ को पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला उसको कामिल शफ़ा मिल जाएगी मौला हुसैन के सदक़े। आप इसको ज़रूर करें, ये इंतहाई बेहतरीन अमल है। मौला हुसैन के सदक़े को उसको शफ़ा मिलेगी, इमाम हुसैन के इस समय आज़म के सदक़े उसको शफ़ा मिलेगी। और आखिरी अमल जो मैं आपको देना चाहता हूँ, ये शहज़ादा अमीर कासम का वलीमा है, इंतहाई बेहतरीन अमल है। ये आपको मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर के 10 मुहर्रम के दिन तक करना है, उसके बाद आपको ये नहीं करना है। ये 10 मुहर्रम तक इसकी हद है। आपको क्या करना है कि आप 10 मुहर्रम के तक ये अमल करें, ये वलीमा करें शहज़ादा अमीर कासम का। आप 14 सैयदों के घर जाएं, उनको कहें कि मैंने अमीर कासम का, शहज़ादा अमीर कासम का वलीमा पकाया है, आपको दावत है, मेरे घर आएँ। 14 सादात के घरों को आप दावत पेश करें। फिर जो भी आपकी जितनी भी ताकत हो, आप अमीर कासम के नाम से वो वलीमा पकाएं। अच्छा, उससे आप खुद न खाएं, न अपने घर भातियों को दें। जब वो सादात 14 घरों के सादात खा करके चले जाएं, फिर आपको क्या करना है कि पाक जगह पर बैठ करके 7 बार सूरह फातिहा, 5 बार सूरह अखलास और 7 बार सूरह यासीन, अव्वल आखिर 110 बार दुरूद शरीफ पढ़ करके शहज़ादा अमीर कासम को हदिया करें। और उसके बाद आपको ये वलीमा सादात में बांटना है। जब वो सादात चले जाएं, फिर आपको क्या करना है कि आप उस बचा हुआ जो खाना है उसको सामने रख करके आप कहें, अये सिद्दीक़ा बीबी फ़ातिमा सलामु अलैहा, मैंने ये करबला के दूल्हे अमीर कासम का वलीमा किया है जो करबला वाले न कर सके, इसको कबूल फरमा और मेरी जो फ़लाँ हाजत है वो पूरी फरमा। इंशाअल्लाह 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 3 दिन में आपको खुशखबरी मिलेगी। शहज़ादा अमीर कासम के सदक़े, दूल्हे अमीर कासम के सदक़े, बीबी पाक के सदक़े आपकी वो जो हाजत है पूरी हो जाएगी। आप इसको करके देखें, इससे फ़ायदा उठाएं और मौला हुसैन की अज़ादारी, मौला हुसैन की मातमदारी को न भूलिएगा, क्योंकि ये तुम्हारा हमारा पूरी इंसानियत का फ़रीज़ा है। ये किसी कौम से, किसी ज़ात से, किसी मज़हब से, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखता, क्योंकि हुसैन मोहसन इंसानियत है। हर इंसान का फ़र्ज़ है, फ़रीज़ा है कि मौला हुसैन की अज़ादारी करे, मातमदारी करे। और आपने
اس فرض کو مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یا علی مدد۔